Hello everyone. Good evening to all of you. Let us start another video. बच्चों, in this video we are going to learn about the concept of human eye only. So in the previous video we were discussing difference between the distant object and the nearby object. So we covered the concept of distant object. So in this video we will be covering nearby objects. So let us start with that. So nearby objects. Okay. So nearby ऑब्जेक्ट्स. बच्चों, कैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कहते हैं? जो हमारे आई लेंस के काफ़ी करीब हो, जो काफ़ी नज़दीक हो. द ऑब्जेक्ट विच आर वेरी क्लोज टू आवर आई लेंस आर कॉल्ड एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. सो द लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, the light rays which are coming from the nearby objects are diverging in nature. So first write down the point, then we will explain that. So nearby objects, we are writing point wise. The light rays or the light of ray, the ray of light, the ray of light, the ray of light coming from, the ray of light coming from a nearby object, coming from a object, nearby object are diverging, are diverging, or spreading out, or spreading out, spreading out, where they, when they reach the eye, when they reach our eye. बच्चों, नियर बाय ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज, नियर बाय ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज, जैसे मान लेते हैं यह नियर बाय ऑब्जेक्ट है, ठीक है. दिस इज ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट. वी कैन चेंज द कलर. ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट. दिस इज नियर बाय object to our eye lens. So when the object is very near to our eye lens, so this is our eye lens. Okay. So when the light rays are coming from nearby objects, so they are diverging in nature, diverging rays from nearby objects. So objects are reflecting the light rays, so these light rays are diverging rays from nearby objects. So we can call this one as diverging rays from nearby object. So these are the light rays which are coming out or coming from nearby objects and which are highly diverging in nature. So whenever these rays will come, what will happen? So let us write down point wise, one by one. Okay. So first point we are writing, we will write in important note. Okay. So here we can write note. So first point we are writing right now. The diverging rays coming from a nearby object needs, the diverging rays, the diverging rays, the diverging rays coming from a nearby object, coming from a nearby object, coming from a nearby object need a convex eye lens, need a convex eye lens of high converging, of high converging, high converging power, high converging power to converge, to converge them, to converge them, or focus them to form, or to focus them
to form an image on retina, an image on retina of the eyes। बच्चों इस पॉइंट को आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपका आई लेंस है, दिस इज़ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जब डाइवर्जिंग रे ऑब्जेक्ट से आएगा बच्चों, दिस इज़ ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, दीज आर द डाइवर्जिंग रेज। तो जब यह यहाँ पर आकर के इंसिडेंट होगा तो इसको कन्वर्ज कराने के लिए, अगर ये हमारा रेटिना है, इफ दिस इज़ रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, तो इन लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कराने के लिए, ताकि इमेज का फॉर्मेशन हो सके, ये जो डाइवर्जिंग रेज है इनको कन्वर्ज कराने के लिए रेटिना पर हमें कन्वर्जिंग लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस है? हमारा आई लेंस है। दिस इज़ कन्वर्जिंग आई लेंस। बच्चों इस केस में जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं तो इन दैट केस जो कॉन्वेक्स आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होनी चाहिए? इट शुड बी हाई, इट शुड बी हाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कन्वर्जिंग पावर जो होनी चाहिए हाई होनी चाहिए टू कन्वर्ज दिस डाइवर्जिंग रेज इन ऑर्डर टू फोकस देम टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना ऑफ द आई। अगर कन्वर्जिंग पावर कम होगा बच्चों तो यह लेंस जो आई लेंस है इन डाइवर्जिंग रेज को रेटिना पर फोकस नहीं करा पाएगा और इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इमेज फॉर्म करने के लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है, और फोकस होने के लिए कन्वर्जिंग पावर हाई होनी चाहिए। बच्चों आपको यहाँ पर एक हिंट दे रहा हूँ, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, वेयर f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। सो f जो है बच्चों यहाँ पर फोकल लेंथ है, f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। तो जितना कम फोकस होगा बच्चों, जितना लेस होगा फोकस, पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमें कैसे आई लेंस की ज़रूरत है? कॉन्वेक्स आई लेंस की ज़रूरत है जिसका पावर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो पावर हाई होगा, इसके लिए फोकल लेंथ क्या होना चाहिए बच्चों? फोकल लेंथ लो होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होंगे तो इन दैट केस फोकल लेंथ ऑफ जो आई लेंस होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा, और पावर जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा डाइवर्जिंग रेज को हमें फोकस कराना है रेटिना पर, तो हमें लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि व्हेन वी सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, अंडर दैट कंडीशन, जब हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं बच्चों, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स व्यू, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स व्यू, जब हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स व्यू, द आई लेंस, द आई लेंस शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ छोटा कम होना चाहिए, स्मॉल फोकल लेंथ, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों? पावर जो होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए? पावर, और कौन सी पावर? कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर शुड बी हाई। क्यों हाई होनी चाहिए कन्वर्जिंग पावर? सर इसलिए कन्वर्जिंग पावर हाई होनी चाहिए क्योंकि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर आएगा बच्चों आई पर, वो कैसा होगा? डाइवर्जिंग नेचर का होगा। तो जितना ज़्यादा डाइवर्जिंग रेज को आप फोकस करना चाहेंगे रेटिना पर, उतना ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर होना चाहिए हमारे आई लेंस का। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जिंग रेज, हायर विल बी द पावर ऑफ द आई लेंस। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ग्रेटर द extent, greater the extent of diverging ray, greater the extent of diverging rays, higher should be the power of eye
लेंस। जितना ज़्यादा डाइवर्जिंग रे होगा बच्चों उतना ही ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर होना चाहिए हमारे आई लेंस का, तभी हमारा आई लेंस जो है उसको कन्वर्ज कर पाएगा, अदरवाइज आई लेंस जो रेज है, डाइवर्जिंग रेज है, उसको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इट इन योर माइंड। सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक बार स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। सो these are very very important points. So let us adjust the screen. Yeah, now it is adjusted. So we were discussing at this point. So greater the extent of diverging ray, higher should be the power of the eye lens. Okay. So moving forward. Okay. Just a minute. Yeah. Now moving forward. Next point. Next point. Let us start with the next point. Power of accommodation. Power of accommodation. So before we discuss about the power of accommodation, we should think of, बच्चों जब आई लेंस का कर्वेचर ज़्यादा है, व्हेन यू हैव दिस हायर कर्वेचर, राइट, सो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द आई लेंस। अनदर वे क्या हो सकता है बच्चों कि आप यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगा, जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा फोकल लेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इस केस में बच्चों यह फोकस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, यह होगा, दिस इज द फोकल लेंथ एफ। और जब आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, तो उस केस में कर्वेचर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब कर्वेचर छोटा होगा तो फोकस जो है वो नज़दीक होगा, और फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, फोकल लेंथ कम हो जाएगा। सो व्हेन द फोकल लेंथ विल बी लेस, सो दिस इज द नेचर ऑफ दिस आई लेंस। आई लेंस ऐसा होगा, कर्वेचर कम हो जाएगा, तो लेंस कैसा हो जाएगा बच्चों, थिक हो जाएगा। यहाँ पर थिन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थिक होगा। डायग्राम को और प्रॉपर बना सकते हैं आप यहाँ पर। सो ये डायग्राम जो है आप इसको इरेज करिए और थिन लेंस का फॉर्मेशन करिए यहाँ पर। जब आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं तो आई लेंस कैसा होता है, थिन होता है, दिस इज थिन आई लेंस। और जब आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं तो आई लेंस कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, थिक आई लेंस। सो दिस इज थिक आई लेंस। सो व्हेन आई लेंस विल बी थिक, जैसे आई लेंस थिक होगा बच्चों वैसे ही कर्वेचर क्या हो जाएगा, इस आई लेंस का कर्वेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कर्वेचर जो है, कर्वेचर डिक्रीज होगा, और कर्वेचर जैसे ही डिक्रीज होगा फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, फोकल लेंथ भी कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। और जब थिन होगा बच्चों तो यहाँ पर कर्वेचर जो होगा, कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा, और फोकल लेंथ जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ विल बी मोर, फोकल लेंथ विल बी मोर। बच्चों अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से समझिए, इसको जब आप कंप्लीट करेंगे, इस सरफेस के लिए स्फेयर बनाएंगे तो बड़ा स्फेयर बनेगा, सेंटर बड़ा होगा, दूर होगा यहाँ से, इस स्फेयर का सेंटर बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा, और जब रेडियस बड़ा होगा तो फोकल लेंथ भी बड़ा होगा, और फोकल लेंथ बड़ा होगा, दैट इज व्हाट फॉर ग्रेटर कर्वेचर। जब कर्वेचर इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, जब कर्वेचर कम होगा तो फोकल लेंथ कम होगा। अच्छा, फोकल लेंथ जब ज़्यादा होगा तो पावर इज इक्वल टू 1/f, तो ये जब ज़्यादा तो पावर कम, तो पावर क्या होगा उस केस में, पावर की वैल्यू लेस होगी, लेस कन्वर्जिंग पावर होगा, और यहाँ पर पावर इज इक्वल टू 1/f। जब फोकस कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पावर इंक्रीज करेगा। कुछ बच्चों को मन में यह प्रश्न होना चाहिए कि सर कैसे, पावर इक्वल टू 1/f है, जब फोकस कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यह डिनोमिनेटर में टर्म है बच्चों, डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये जो पावर है 1/f है, तो ये डिक्रीज होगा तो पावर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो पावर जो होगा यहाँ पर, पावर कन्वर्जिंग पावर जो होगा वो क्या होगा, मोर होगा। तो जब हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, व्हेन वी लुक एट द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स थ्रू आवर आई, तो हमें ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर की ज़रूरत होती है। और जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं बच्चों, व्हेन वी लुक एट द
फार पॉइंट, व्हेन वी लुक फार पॉइंट्स, यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट्स, दिस इज फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट्स, या दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए यह सिनेरियो है, और यह नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यह सिनेरियो है। दिस इज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। जब हमारा ह्यूमन आई नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखता है बच्चों, तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन, और जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो यह ऑब्जर्वेशन है। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि सर जब हम ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऑब्जेक्ट को अपने आईज से देखते हैं, तो उसके लिए इमेज फॉर्मेशन तो हर एक केस में रेटिना पर होना चाहिए। तो जब इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर होगा, तो हर केस में जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है लेंस से अलग अलग होगा, तो उसका फोकस जो होगा बच्चों हर एक केस में रेटिना पर होना है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो आई लेंस को हमें ऑटोमेटिकली अपने कर्वेचर को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। आई लेंस ऑटोमेटिकली, ह्यूमन आई का जो आई लेंस है बच्चों, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है अपने कर्वेचर को एडजस्ट करता है, ताकि अपने फोकल लेंथ को ऑब्जर्व एडजस्ट कर सके, और जो फोकल लेंथ एडजस्ट होगा तो पावर एडजस्ट होगा, और इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स के इमेज को रेटिना पर फॉर्म कर पाते हैं, और डिफरेंट पोजीशंस के ऑब्जेक्ट्स को हम रेटिना पर देख पाते हैं, चाहे वो इन्फिनिटी पर का ऑब्जेक्ट हो या नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हो। हर एक केसेस में बच्चों इमेज जो है वो रेटिना पर ही बनना चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो आई लेंस है उसके पास ये सेल्फ एडजस्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने फोकस को एडजस्ट कर सके, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके, और इमेज को हर हाल में रेटिना पर फॉर्म करे। सो दिस इज द नीड ऑफ आवर आई, एंड दैट फीचर वी हैव इन आवर आईज, और सेल्फ एकोमोडेशन पावर होता है हमारे ह्यूमन आईज में। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कैरी करेंगे बच्चों अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, दैट विल बी द एकोमोडेशन और पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को पता है, बट हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखना है बच्चों। पावर ऑफ एकोमोडेशन ह्यूमन आई का क्या होता है, और जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कैसे हम दोनों केसेस में इमेज को फॉर्म करते हैं रेटिना पर। तो इन बेसिक जानकारी को आपने पहले होल्ड करना है, फिर आगे के टॉपिक्स में हम लोग चीज़ों को कंटिन्यूसली लर्न करेंगे। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू बच्चों।